Now in this video we are going to discuss the theoretical concept of scalar triple product. Okay, in the introduction video, if you have gone through well, you will find that in theoretical concept we have two choices. The first thing what we do in theoretical concept is introduce dot and cross. Okay, so if you find box A bar, B bar, C bar, what we can do is we can introduce dot and cross. और कहाँ पे dot कहाँ पे cross. So I said dot और cross आप कहाँ पे भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, but the bracket has to be on cross, बराबर. But we prefer पहले dot and बाद में cross. And the second thing, if you recall, was the formula of box A bar, B bar, C bar, which was mod A, mod B, mod C, sin phi, cos theta. बराबर. Where phi, if you recall, was the angle between cross, मतलब जिसके बीच में आपने क्रॉस रखा है उसके बीच का एंगल, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन डॉट. ठीक है. सो वी कैन एक्सपेक्ट टू टाइप्स ऑफ सम्स इन दिस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. वन इज वेर वी इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस, एंड अदर वन वेर वी टॉक अबाउट mod A, mod B, mod C, sin phi, cos theta. Now obviously we can use this formula only when we know the angles. ओके, तो अगर एस टी पी के क्वेश्चन में अगर एंगल दिया है तो वी यूज़ दिस फार्मूला, अदरवाइज वी इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस एंड यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन सेज इफ A bar, B bar and C bar are non-zero, non-coplanar vectors, then show that box A bar plus B bar, B bar plus C bar, C bar plus A bar is equal to 2 box A bar, B bar, C bar. Okay. So in this question, let us start with the required. Now if you see the required is, I want to show this equal to this. Okay. So it is LHS equal to RHS. Now obviously we select one side. So which side we select? We select LHS. So यहाँ पे अपने को LHS से स्टार्ट करना है. So solution, I'm starting with LHS. चलो, LHS is box A bar plus B bar, B bar plus C bar, C bar plus A bar. Now check whether the sum is theoretical or calculative. So it is a theoretical sum because sum में किधर भी A bar, B bar, C bar नहीं दिया है. अगर A bar, B bar, C bar दिया होता तो we could have calculated A bar plus B bar, B bar plus C bar, C bar plus A bar, और उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, determinant, बराबर. But since the vectors are not given, it's a theoretical concept. And just now, as I said, theoretical concept में you have two choices. Either you can introduce dot and cross, okay, or you can go for the concept of, yes, you can go for this formula. Fine, but this formula will be applicable only when the angles are given. तो सब में तो angle दिया नहीं है. So what we do here, we introduce dot and cross. Dot says what? Introduce dot and cross. ठीक है. Okay, so now let's introduce dot and cross. What I get here, A bar plus B bar dot bracket B bar plus C bar cross C bar plus A bar. ठीक है. चलो, now what we do here. So as I said, if you recall dot and cross, जब हमारे पास values नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, we used to open the bracket. Okay, so let's open the bracket. अब मुझे बताओ पहले dot open होगा कि पहले cross open कर लेंगे. So obviously we'll be opening cross first because अंदर का bracket पहले open करते हैं, फिर हम बाहर का bracket open करेंगे. So let's open the bracket. तो यहाँ पे आएगा आपके पास A bar plus B bar dot, let's open the bracket. What do you get? B bar cross C bar plus B bar cross A bar plus C bar cross C bar प्लस सी बार क्रॉस ए बार. ठीक है. एंड क्रॉस प्रोडक्ट में पोजीशन ऑफ द वेक्टर मैटर्स. ओके, तो जरा ध्यान देना. ठीक है. नाउ हियर व्हाट वी फाइंड, डू वी फाइंड दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज 0 बार. तो वहाँ से गायब हो जाएगा सी बार क्रॉस सी बार. सो व्हाट वी गेट नाउ, ए बार प्लस बी बार डॉट इज नॉट, यहाँ पे आएगा बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार. ठीक है, मतलब हमने क्रॉस को ओपन कर दिया. नाउ हम क्या ओपन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो दैट मीन्स ए बार विल बी टेकन डॉट प्रोडक्ट विथ ऑल दिस 3 वेक्टर्स एंड बी बार का भी डॉट लेंगे विथ ऑल 3 वेक्टर्स. सो लेट्स डू दैट. सो व्हाट वी गेट हियर, आई गेट ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार, और प्लीज़ डॉट प्रोमिनेंट होना चाहिए. ठीक है. ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार. चलो नेक्स्ट ओपन बी बार. सो बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार डॉट
बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इसको नोट करेंगे तो जो मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है बराबर। एंड इन दिस डू यू सी डॉट एंड क्रॉस, और अगर डॉट और क्रॉस साथ में आ जाए ओके तो इस डॉट ये बन गए छोटे छोटे एस टी पीस। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू बॉक्स अगेन। तो यहाँ पे आएगा बॉक्स ए बार बी बार सी बार, नेक्स्ट इज व्हाट बॉक्स ए बार बी बार ए बार प्लस बॉक्स ए बार सी बार ए बार, नेक्स्ट इज प्लस बॉक्स बी बार सी बार प्लस बॉक्स बी बार ए बार एंड फाइनली बॉक्स बी बार सी बार ए बार। ठीक है, और जैसे मैंने इसको बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा, इज नॉट यू कैन थिंक ऑफ अ प्रॉपर्टी विच सेज दैट इन एस टी पी इफ द वेक्टर्स आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ एस टी पी इज ज़ीरो। सो कैन आई से वी नो दैट in STP if any two vectors are identical, value of STP is equal to ज़ीरो। याद आया? सो विद दिस इफ़ यू सी आपका ये STP, द थर्ड STP, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सब आपके ज़ीरो हो जाएंगे। बचेगा कौन? फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, सो व्हाट आई गेट हियर इज बॉक्स ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स बी बार सी बार ए बार। अगेन आपने STP को अगर अच्छे से रिवाइज किया होगा तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा दिमाग में आता है? ऑब्वियसली इंटरचेंजिंग द वेक्टर्स। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, इन द RHS टेल मी विच वेक्टर यू वांट। RHS में अगर आप देख रहे हो तो बॉक्स ABC चाहिए, तो हम ABC को हाथ नहीं लगाएंगे, विल थिंक अबाउट दिस। ठीक है, चलो अब मुझे पता है इसको ABC बनाना है, तो आप पहले किसको इंटरचेंज करेंगे? A को B के साथ बराबर, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ACB। ठीक है, और फिर B और C को इंटरचेंज करेंगे। सो हाउ मेनी इंटरचेंजेस आर रिक्वायर्ड? टू इंटरचेंजेस बराबर। एंड इफ़ यू हैव टू इंटरचेंजेस टेल मी STP का वैल्यू चेंज होगा कि सेम रहेगा? तो ऑब्वियसली सेम रहेगा। ठीक है, सो कैन आई से इन STP इफ एनी टू वेक्टर्स आर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ STP changes by sign, isn't it? तो आपका खाली साइन चेंज होगा, बट हाउ मेनी इंटरचेंजेस आर देयर इन दिस टू, सो देयर विल बी नो साइन चेंज। तो कैन आई से इट इज बॉक्स ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स ए बार बी बार सी बार विच मेक्स इट टू टाइम बॉक्स ए बार बी बार सी बार। सो यू गॉट LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, सो अभी हम जितने भी सम करेंगे मैक्सिमम सम में हमको यही करना है। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम हमने क्या क्या किया। ओके, वी टूक LHS फर्स्ट। LHS में व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सिंस इट्स अ थियोरेटिकल सम वी हैव इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस बराबर। फिर हमने किसको सॉल्व किया? अगर आप देख रहे हो तो क्रॉस को सॉल्व किया। ठीक है, क्रॉस को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने किसको सॉल्व किया? डॉट को सॉल्व किया। डॉट सॉल्व किया तो क्या मिला? छोटे छोटे STPs मिल गए बराबर। एंड इन दोज STPs आइडेंटिकल तो ज़ीरो हो जाएगा, तो दैन नेक्स्ट वो प्रॉपर्टी यूज़ किया एंड देन हमने इंटरचेंज वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो वी गॉट द फाइनल आंसर। सो कैन आई से हियर इन दिस टाइप ऑफ सम we follow 5 steps. Okay, number 1 is introduce dot and cross. Number 2, solve cross. Number 3, solve dot. Number 4, identical vectors implies STP 0. Number 5, interchange implies sign change बराबर। या 5 स्टेप फॉलो करो, आपका आंसर रेडी। ओके, सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कैसा करना है ये चीज़। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, सम कोई भी हो करना ये 5 स्टेप्स ही है। ठीक है, नाउ यार कुछ लोग ने स्टार्टिंग में शायद से सोचा होगा, ना ध्यान से देखना, एंड डोंट मिक्स अप दिस फॉर MCQ ओनली बराबर। अब अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ बॉक्स ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार बराबर। ठीक है, सो हियर कैन वी यूज़ डिटर्मिनेंट? द आंसर इज नो। ओके, इन थियरी वी कैन नॉट यूज़ डिटर्मिनेंट बिकॉज ये IJK नहीं है, बट MCQ में प्लीज़ रिमेंबर वी ट्रीट थिंक एज ए बार एज I cap, B bar as J cap and C bar as K cap.
ओके तो अगर मैं आई जे के हिसाब से इसको इमेजिन करता हूँ तो कैन आई नाउ यूज़ डिटर्मिनेंट? यस आई कैन यूज़ द डिटर्मिनेंट बराबर, जिसमें एंट्री ज़रा बताओ क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ ए बार बराबर, यहाँ पे बी बार और यहाँ पे सी बार। ठीक है, सो विद दिस गिव मी कोएफिशिएंट ऑफ ए बार 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, सी नहीं है तो यहाँ पे आएगा 1 1 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला वेक्टर देख के बताओ एंट्री क्या आएगा। ऑब्वियसली ए बार नहीं है तो ए बार में 0, बी बार सी बार में 1 1। ठीक है, एंड फाइनली सी बार प्लस ए बार में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 0 1। ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ये जो 1 है वो सी का नहीं है, ए का है। ठीक है, तो ऑर्डर हैज़ टू बी ए बी सी। अब ये चीज़ को आपको क्या करना है पता है, इनटू बॉक्स ए बार बी बार सी बार करना है। ओके, मतलब जो ऑर्डर में आपने एंट्री किया वो ऑर्डर को आपको यहाँ पे लिखना है। आर यू गेटिंग दिस? एंड दिस इज द शॉर्टकट फॉर MCQ। अब एक काम करते जरा डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। लेट्स ओपन द डिटर्मिनेंट। व्हाट आई गेट 1, यहाँ पे 1 माइनस 0 बराबर -1 ब्रैकेट 0 -1 प्लस 0, ये आपका डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो गया। बट इनटू बॉक्स ABC तो आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट यू गेट हियर, ये 1 -1 प्लस 1 -1 क्या हो जाएगा, +1। 1 + 1 इज वॉट, 2 बॉक्स ए बार बी बार सी बार, एंड वी गॉट द रिजल्ट। Okay, but then I repeat again, this is only for MCQ, please understand. Okay, cannot use this shortcut in theory बराबर, तो यहाँ पे मेंशन कर लेना, cannot use this in theory। ठीक है, सो विद दिस आई होप दोनों थिंग क्लियर हो गया। ओके, अगर थियरी हुआ तो हम क्या करेंगे, ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे। व्हाट आर दोज 5 स्टेप्स, इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस, सॉल्व डॉट, आइडेंटिकल तो 0 और इंटरचेंज तो साइन चेंज, आपका आंसर रेडी। और ये अगर MCQ में आया तो क्या करेंगे, वी कैन यूज़ डायरेक्टली डिटर्मिनेंट, बट डिटर्मिनेंट के साथ क्या करना है, बॉक्स ABC से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ना इसको स्टार मार्क कर देना। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ABC की ऑर्डर कौन डिसाइड किया, जैसा आपने एंट्री किया। नाउ अगर कोई बच्चा ये बोलेगा सर मुझे यहाँ पे बी बार सी बार ए बार के हिसाब से एंट्री करना है, चॉइस इज योर्स, तो आपको यहाँ पे बी सी और ए लिखना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली अदर साइड में ABC चाहिए था तो वी हैव गॉन फॉर ABC। आर यू गेटिंग दिस? चलो एक काम करते, एक सम और लेते, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। ओके, इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर नॉन ज़ीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, then show that, okay, then show that this time we take a bar plus 2b bar minus c bar. Okay, I would take this as in STP box form. So box a bar minus 2b bar plus c bar, a bar minus b bar, a bar minus b bar minus c bar is equal to 3 box a bar b bar c bar। चलो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, शो दैट बोला है, बट LHS इक्वल टू RHS। टेल मी विच साइड यूल टेक, ऑब्वियसली विल टेक LHS बराबर। LHS में अपने को क्या दिख रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कितना चॉइस है अपने पास, 2, थियोरेटिकल एंड कैलकुलेटिव। ये कौन सा है, थियोरेटिकल, बिकॉज डिटेल डेटा में वेक्टर्स नहीं दिए, IJ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो ये आपका इनिशियल थॉट हो गया। नाउ लेट्स टेक LHS ले लिया। ठीक है, LHS इज बॉक्स ए बार माइनस 2b बार प्लस सी बार, यहाँ पे आएगा ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार। ओके, पहले हम थियोरेटिकल स्टाइल से करेंगे, फिर हम लोग MCQ स्टाइल से करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर थियोरेटिकल स्टाइल। थियोरेटिकल स्टाइल क्या बोलता है, विल फॉलो 5 स्टेप्स बराबर। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, इंट्रोड्यूस क्या, इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस। चलो ठीक है, डॉट एंड क्रॉस को इंट्रोड्यूस करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए बार माइनस 2b बार प्लस सी बार डॉट ब्रैकेट में ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार। ठीक है, चलो अब किसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग क्रॉस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस को सिंप्लीफाई करेगा तो क्या आएगा, ए बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ए बार गया, नाउ बी बार का टर्न, माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 2 वेक्टर्स का आंसर 0 आएगा, 0 बार ए बार क्रॉस ए बार और बी बार क्रॉस बी बार, वो 0 बार हो गया। ठीक है, सो नाउ टेल मी व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, आई एम लेफ्ट विथ ए बार माइनस 2b बार प्लस सी बार डॉट ब्रैकेट में, चलो क्या बचा, माइनस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी
माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी। अब अगर इसमें ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे और एक अजीब सा चीज़ आपको नोट होगा, ये आपका ए क्रॉस बी है, ये आपका बी क्रॉस ए है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम सेम कर सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द वेक्टर। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हम इंटरचेंज करते हैं तो इज इट नॉट, यहाँ पे साइन बदल जाता है, ठीक है। सो हियर एक एडिशनल स्टेप होगा, ए बार माइनस टू बी बार प्लस सी बार, ओके। यहाँ पे आ जाएगा बी बार क्रॉस ए बार पॉजिटिव, ए क्रॉस सी एज इट इज़ माइनस बी क्रॉस ए, और यहाँ पे आएगा प्लस बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ ए बार माइनस टू बी बार प्लस सी बार डॉट प्रोडक्ट विथ ए बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार। चलो ठीक है, मतलब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से ओपन हो गया। नाउ थर्ड स्टेप क्या बोलता है, डॉट को ओपन करते हैं। चलो ठीक है, नाउ लेट्स ओपन द डॉट प्रोडक्ट। व्हाट आई गेट हियर, ए बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार, नेक्स्ट इज व्हाट, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस टू बी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार, और कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। सो माइनस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। चलो नेक्स्ट सी बार को अंदर लेते हैं, सी बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। सो अगर आप समझ रहे हो तो मैंने डॉट को ओपन कर दिया। चलो अब अगर ध्यान से देखो तो ये सब छोटे छोटे बॉक्स प्रोडक्ट बन गए। सो ए बार सी बार प्लस बॉक्स ए बार बी बार सी बार माइनस टू बॉक्स बी बार ए बार सी बार, टू को बाहर रख सकते हो, ठीक है। माइनस टू बॉक्स बी बार सी बार प्लस बॉक्स सी बार ए बार सी बार प्लस बॉक्स सी बार बी बार सी बार। यहाँ तक ठीक है। चलो अब मुझे क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल, ओके। तो कैन आई से इन एस टी पी इफ एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ एस टी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ज़ीरो हो जाएंगे, फर्स्ट वाला ज़ीरो बराबर, ओके। तो बचा कौन, बॉक्स ए बार बी बार सी बार बचेगा, नेक्स्ट वाला माइनस टू बॉक्स बी बार ए बार सी बार बचेगा, एंड रेस्ट ऑल विल बी ज़ीरो, बराबर। चलो अब लास्ट फाइनल स्टेप, कौन सा स्टेप है, इंटरचेंज वाला। सो मुझे ए बी सी चाहिए तो इसको हाथ लगाएंगे नहीं, ठीक है। चल मैं इसको ए बी सी बनाना है तो कितना इंटरचेंज करना पड़ेगा, वन इंटरचेंज, और जैसा बोला वन इंटरचेंज क्या होगा, साइन चेंज, ओके। तो कैन आई से इन एस टी पी if any two vectors are interchange, value of STP changes sign, बराबर कि नहीं। और ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर, बॉक्स ए बार बी बार सी बार प्लस टू टाइम बॉक्स ए बार बी बार सी बार, ठीक है। एंड विद दिस आई होप यू गॉट एन आइडिया, द फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, थ्री टाइम बॉक्स ए बार बी बार सी बार एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आर यू गेटिंग इट, ओके। तो सम कोई भी हो आपका रिजल्ट तो आपको ऐसे ही लाना है, ठीक है, फाइन। अब ज़रा एम सी क्यू स्टाइल से कर लेते हैं, ओके। इन एम सी क्यू, चलो अपने पास था बॉक्स ए बार माइनस टू बी बार प्लस सी बार, ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सीधा डिटर्मिनेंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन खाली डिटर्मिनेंट नहीं, इनटू क्या करना पड़ेगा, बॉक्स ए बी सी, बिकॉज एंट्री हम बॉक्स ए बी सी के हिसाब से करेंगे। गिव मी कोएफिशिएंट ऑफ ए बी एंड सी, ए का वन माइनस टू और ये वन, ए का कोएफिशिएंट वन माइनस वन ज़ीरो, okay, and finally we have 1 minus 1 minus 1, ठीक है। so with this what we get here, 1 bracket is not 1 minus 0, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस टू हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस वन और ये ज़ीरो, बराबर, ओके। एंड फाइनली प्लस वन ब्रैकेट में व्हाट यू गेट, माइनस वन प्लस वन। आर यू गेटिंग इट यहाँ पे, ओके। वन माइनस टू वन, एक सेकेंड है, यहाँ पे हमारा किधर साइन का मिस्टेक हुआ क्या, ए माइनस बी माइनस सी, हियर वी आर गेटिंग माइनस साइन, ये ज़ीरो हो जाएगा। हाँ येस, आई मेड अ मिस्टेक हियर, इफ़ यू सी इट वाज प्लस माइनस टू बी प्लस सी ना, ओके। एक सेकेंड ना, यहाँ पे किधर गड़बड़ है अपना, माइनस टू बी प्लस सी, इफ आई ओपन माइनस टू, लेट अस चेक हियर। देखो पहले हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस, बराबर, फिर हमने क्रॉस को ओपन किया, ए क्रॉस ए माइनस, हाँ यहाँ पे देखो साइन का एक गड़बड़ हो गया है अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। सो हियर देयर इज़ वन मिस्टेक इन द साइन, दैट मिस्टेक इज माइनस,
ओके, ए और सी माइनस होगा, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, यस। तो ए और सी का वैल्यू माइनस आएगा, ठीक है। सो आई एम चेंजिंग हियर, ए और सी का वैल्यू माइनस आएगा, ठीक है। तो व्हाट आई गेट हियर, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। सो इफ आई ओपन द ब्रैकेट व्हाट आई गेट, माइनस ए सो हियर व्हाट वी गेट हियर इज, यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस वाला स्टेप, ओके, वी आर चेंजिंग इट। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ओके, सॉरी, कहाँ गया स्टेप, यस। अगेन आई रिपीट, विल फोकस ऑन दिस स्टेप। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ओके, फाइन, देन प्लस, दैट इज़ ओके, हियर आई विल गेट प्लस, बराबर, माइनस, एंड हियर आई विल गेट माइनस, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। नाउ विद दिस टेल मी, ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। एक बार आराम से वापस एक बार आप कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ए बी सी तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा +2BCA, ठीक है। सो अगर मैं इंटरचेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, सो माइनस आ जाएगा, एंड विद दिस व्हाट आई गेट हियर, माइनस ऑफ बॉक्स ABC, ठीक है। सो यह क्वेश्चन में आई एम जस्ट डूइंग वन चेंज, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द MCQ शॉर्टकट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो देखो, यहाँ से मैंने वो पकड़ा कि आंसर हमारा गलत है। इफ़ यू सी हियर, टेल मी व्हाट आई गेट हियर, इस डॉट पहले में 1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, ये तो +0 हो जाएगा, इनटू बॉक्स A बार B बार C बार। सो फाइनली व्हाट आई गॉट, माइनस ऑफ बॉक्स A बार B बार C बार, LHS इक्वल टू RHS। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो दिस इज़ द वे वी डू इट। प्लीज़ मेक इट वेरी क्लियर। अगर आपने ये टेक्निक थियोरी में किया तो यू विल गेट 0 मार्क, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर सम। If A bar, B bar and C bar are non-zero vectors, then show that box A bar minus B bar minus C bar minus A bar is equal to 2 box A bar, B bar, C bar when A bar, B bar and C bar are coplanar। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट एन आइडिया अबाउट द की वर्ड ऑफ दिस सम। अगर आप सम में देख रहे हो तो ए बार, बी बार, सी बार आर कोप्लेनर पे मेरा सबसे पहले ध्यान गया। एंड टेल मी, वेन एवर वी सी द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, आपके दिमाग में क्या आएगा? इज नॉट आपके दिमाग में आएगा एस टी पी इज इक्वल टू 0। बट किसका एस टी पी? ए बी सी का। ओके, तो दैट मीन्स अगर आप देख रहे हो तो आर एच एस में जो बॉक्स ए बी सी है उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 0। व्हाट इज 0 इंटू 2? 0। मतलब एक्चुअली प्रूव क्या करना है? एल एच एस इज इक्वल टू 0। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सो प्लीज़ मेक श्योर जब भी सम आप सॉल्व करो, ए बी सी के बारे में सम में क्या लिखा है ज़रा ध्यान से देखना। इन द प्रीवियस सम इफ़ यू ऑब्जर्व, आपने अगर देखा रहेगा तो मैंने क्या बोला था? ए बार, बी बार, सी बार आर नॉन ज़ीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड दैट इज़ वाई दिस एग्जिस्ट, नहीं तो फिर ये 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना दैट डिफरेंस वॉज कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, बाकी सॉल्विंग स्टाइल तो वही रहेगा। तो सोल्यूशन लेटेस्ट टेक एल एच एस। चलो एल एच एस लेते हैं। व्हाट इज एल एच एस में? यू फाइंड बॉक्स ए बार माइनस बी बार, बी बार माइनस सी बार, सी बार माइनस ए बार। It's a theoretical sum, so what we do first is not we introduce dot and cross, बराबर। so introduce dot and cross। चलो इसमें डॉट एंड क्रॉस इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉक्स ए बार, सॉरी ब्रैकेट में ए बार माइनस बी बार डॉट ब्रैकेट में बी बार माइनस सी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। चलो अब किसको पहले सॉल्व करेंगे? तो ऑब्वियसली क्रॉस को पहले सॉल्व करेंगे। सो ए बार माइनस बी बार डॉट, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, साइन का ध्यान रखना, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। चलो ठीक है, फाइन। चलो अब यहाँ से कौन सा वेक्टर 0 हो जाएगा? सी बार क्रॉस सी बार, सॉरी। सो यहाँ पे देयरफॉर, सॉरी, सिंस सी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0 बार, तो वहाँ से हम उसको गायब कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी डॉट ब्रैकेट में बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए
प्लस सी क्रॉस ए। अब जरा एक बार ध्यान से देख लो, लाइक द प्रीवियस सम, कोई रिपीटेड वेक्टर तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे कोई भी रिपीटेड वेक्टर नहीं है, नहीं तो क्या करता है उसको इंटरचेंज करके कट कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी गो फॉर, विल ओपन द डॉट प्रोडक्ट। चलो ठीक है, अब डॉट ओपन करते हैं, तो ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। नेक्स्ट अब बी बार को ओपन करते हैं, तो माइनस बी बार डॉट बी क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस बी बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार एंड फाइनली माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार। आई रिपीट, डॉट प्रोमिनेंट रखना, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, छोटे छोटे एस टी पी बन गए, ए बार बी बार सी बार, नेक्स्ट इज ए बार बी बार ए बार, नेक्स्ट इज ए बार सी बार ए बार, नेक्स्ट वाला बी बार सी बार प्लस बी बार ए बार एंड फाइनली माइनस बी बार सी बार ए बार, ठीक है। नाउ इन द फोर्थ स्टेप हम लोग क्या करते थे, इन एस टी पी इफ एनी टू वेक्टर्स, क्या एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ एस टी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से ज़ीरो वाले एस टी पी निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, बॉक्स ए बार बी बार सी बार बचेगा, और जरा देखो लास्ट वाला बी बार सी बार ए बार बचेगा, ठीक है। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब कौन सा आएगा, इंटरचेंज। ओके, सो इन एस टी पी इफ एनी टू वेक्टर्स आर इंटरचेंज, value of STP changes by sign, value of STP changes by sign। चलो ठीक है। सो टेल मी हियर, अगर मुझे ABC बनाना है तो पहले A और B को इंटरचेंज करना पड़ेगा, और A और B को किया तो ऑर्डर क्या होगा, ACB हो जाएगा। मुझे ABC चाहिए तो B और C को भी तो इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो हाउ मेनी इंटरचेंजेस आर देयर, कैन आई से 2 इंटरचेंजेस, ओके। एंड इफ देयर आर 2 इंटरचेंजेस, साइन चेंजेस और इट रिमेन सेम, इट रिमेन सेम, ठीक है। सो ए बार बी बार सी बार माइनस ए बार बी बार सी बार, व्हाट हैपेंस, दिस विल गेट कैंसल एंड यू गेट ज़ीरो। बट RHS में अगर आप देख रहे हो तो ज़ीरो नहीं है, RHS में क्या है, 2 बॉक्स ए बार बी बार सी बार। बट व्हाट डिड आई से, ट्विस्ट क्या किया उन्होंने, सिंस ए बी सी, ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, okay, coplanar vectors, तो can I say it is 2 into 0, आंसर is 0, so LHS is equal to RHS। so मतलब ये टाइप के सम में पहले देख लेने का that जो वेक्टर्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर है। अगर कोप्लेनर हुआ तो देर इज़ नो पॉइंट सॉल्विंग, आंसर इज गोइंग टू बी 0। आई होप यू गेटिंग इट। तो MCQ का एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है, ध्यान रखने का, ठीक है। हाँ, अगर नॉन कोप्लेनर है तो फिर अपने को शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विथ इट। अब मैं इसमें MCQ शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, आप रफ में इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन दे लिंक दिस, ध्यान से देखना, इफ बॉक्स ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप with 2a bar plus b bar, comma 2b bar plus c bar, comma 2c bar plus c bar as co-terminus edges, ठीक है। ना पहली बार जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं बोला क्या बकवास क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला क्या है, बॉक्स ABC, और बॉक्स ABC तो दे दिया है। बट इफ़ यू रिकॉल माय डिस्कशन जो मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में दिया था, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या है, is not volume of parallel pipe का formula is box product of ABC नहीं, coterminous edges। सो प्लीज़ डोंट से, मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूला को रीड करो, उसको बाय हार्ट मत करो, ठीक है। सो इट इज़ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ कोटर्मिनस एजेस, और सब में देखो कोटर्मिनस एजेस कौन सा दिया है, तो यू कैन क्लियरली सी दैट द कोटर्मिनस एजेस आर 2a बार प्लस बी बार, 2b बार प्लस सी बार, 2c बार प्लस सी बार एज कोटर्मिनस एजेस, ठीक है। सो अब मेरे हिसाब से सम बहुत सिंपल हो गया। इन द सोल्यूशन कैन आई से वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप is equal to box 2a bar plus b bar, 2b bar plus c bar, 2c bar plus a bar,
ठीक है। चलो, इट्स एस टी पी का सम, इज इट थियोरेटिकल और कैलकुलेटिव? सो इट्स अ थियोरेटिकल सम, बट थियोरेटिकल में भी दो पॉसिबिलिटी है, एक है इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस और एक है एंगल बेस्ड सम। ठीक है, अब सम में तो किधर एंगल दिया नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस। चलो ठीक है, लेट्स इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस। किधर डॉट किधर क्रॉस, तो पहले डॉट बाद में क्रॉस। ठीक है, आप उल्टा लेके भी करो, आंसर वही आएगा, आई ऑलरेडी सेड दैट। ठीक है, चलो अब किसको ओपन करेंगे, तो ऑब्वियसली क्रॉस को पहले ओपन करेंगे, कांस्टेंट को आप आगे रख देना। ठीक है, चलो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 4b क्रॉस सी। ठीक है, नेक्स्ट इज 2b क्रॉस ए बराबर, नेक्स्ट इज प्लस 2c क्रॉस सी प्लस सी बार क्रॉस ए बार बराबर। अब इसमें से क्या हो जाएगा, सी बार क्रॉस सी बार क्या हो जाएगा, 0 बार। सो लेट्स निगलेक्ट दैट, व्हाट आई गेट 2a बार प्लस b बार डॉट विथ 4b क्रॉस सी प्लस 2b क्रॉस ए प्लस c क्रॉस ए। चलो यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग डॉट को ओपन करेंगे, तो डॉट में भी ध्यान रखना, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन आप आगे लिख सकते हो। सो व्हाट यू गेट हियर इज नॉट, वी गेट 2 इंटू दिस मतलब 8 ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। नेक्स्ट क्या, 4 ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार। चलो नेक्स्ट क्या, प्लस 4 बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार प्लस 2 बी बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार एंड फाइनली यहाँ पे आएगा प्लस, एक सेकेंड हाँ, मैंने एक टर्म यहाँ पे मिस किया, सॉरी। ओके, I repeat, 2 into 4 8 a bar dot b bar cross c bar, 2 into 2 4 a bar dot b bar cross c bar, 2 into this यहाँ पे आएगा प्लस 2 a bar dot c bar cross a bar। चलो अब b को ओपन करते हैं, तो 4 b bar dot b bar cross c bar। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस 2 b bar dot b bar cross a bar एंड फाइनली b bar dot c bar cross a bar। चलो ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे छोटे छोटे एस बन गए, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, 8 ए बार बी बार सी बार, 4 ए बार बी बार ए बार, यहाँ पे आएगा प्लस 2 ए बार सी बार ए बार, सॉरी ए बार को मैंने अंदर लेना था, ए बार सी बार ए बार प्लस 4 बी बार सी बार प्लस 2 बी बार ए बार प्लस बॉक्स बी बार सी बार ए बार। ठीक है, अब मैं वो प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूँ, बट आप लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आइडेंटिकल इम्प्लाइज ज़ीरो। ठीक है, आप पूरा प्रॉपर्टी लिख देना, फाइन। सो विद दिस टेल मी क्या बचेगा, तो इज नॉट यहाँ पे बचेगा 8 बॉक्स ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स बी बार सी बार ए बार। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी दिमाग में आता है, इंटरचेंज। ओके, जरा ध्यान से देखो, ए बी सी बनाने के लिए कितनी बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। ओके, सो अगर 2 इंटरचेंज किया तो यहाँ पे आएगा 8 बॉक्स ए बार बी बार सी बार प्लस बॉक्स ए बार बी बार सी बार, विच मेक्स इट 9 बॉक्स ए बार बी बार एंड सी बार। लेकिन इज इट नॉट, इट इज़ गिवन दैट बॉक्स ए बार बी बार सी बार का वैल्यू क्या दिया है, 3, उठा के रिप्लेस करते तो व्हाट आई गेट 9 इंटू 3 विच इज़ 27 क्यूबिक यूनिट्स, बिकॉज वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट एन आइडिया, मतलब वही कॉन्सेप्ट को उन्होंने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप में डाल दिया। अब यही चीज़ वो लोग टेट्राहेड्रॉन में भी कर सकते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला, इट वाज 1/6 बॉक्स ए बार बी बार सी बार। यहाँ तक समझा आपको? ओके, सो विच मीन्स एज आई सेड, अगर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ तो आपको 5 स्टेप करना है। चलो एक काम करते हैं, इसको MCQ स्टाइल से भी करते हैं। ओके, फॉर MCQ, इज इट नॉट यू हैड 2a बार प्लस बी बार, 2b बार प्लस सी बार, 2c बार प्लस ए बार। चलो अब बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इनटू क्या, बॉक्स ए बार बी बार सी बार। चलो एंट्री करो, तो यहाँ पे आएगा ए बी सी कोएफिशिएंट, यहाँ पे आएगा ए बी सी, ऐसा बोल के लिखेंगे तो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए, ध्यान रखना 2 नहीं। ठीक है, बी सी बोल के लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट 4 माइनस 0 minus 1 bracket 0 minus 1 plus 0 complete into box a bar b bar c bar, and the next step if you see the answer is ready, 4 2 जा 8 minus minus plus 9 box abc। ठीक है, और abc का वैल्यू कितना, 3, आंसर 27। सो नो डाउट इट्स अ फास्ट टेक्निक, बट ये आप एग्जाम में कर सकता नहीं है, मेक इट वेरी क्लियर। ठीक है, चलो फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम ऑफ दिस कैटेगरी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर थियरी। ओके, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड्स में। फाइन, द क्वेश्चन इज
show that if 4 points, I would write this way, if 4 points A, B, C and D are coplanar, okay, then show that box B bar C bar D bar plus box C bar A bar D bar plus box A bar B bar D bar is equal to box A bar B bar C bar. ओके, सो इट्स अ 4 मार्क्स सम, जरा ध्यान से देखना. चलो अब ये क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, रिक्वायर्ड से स्टार्ट करते हैं. शो दैट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. ऑब्वियसली कौन सा साइड लेंगे, एल एच एस. लेकिन अगर आप एल एच एस में देख रहे हो तो ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है. ओके, छोटे छोटे एस टी पी ऑलरेडी बने हुए हैं. ओके, एंड देर इज़ नो आइडेंटिकल वैक्टर्स, देर इज़ नो इंटरचेंज, सो यू कैनॉट डू एनीथिंग इन दिस. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड से स्टार्ट करके कोई मतलब नहीं है. ठीक है, और वैसे भी जरा सम में एक बार ध्यान से देखो, एक कीवर्ड देखा क्या आपने, ए बी सी डी आर कोप्लेनर. और ऑब्वियसली ए बी सी डी आर कोप्लेनर क्या, वेक्टर्स की पॉइंट्स, तो दे आर कोप्लेनर पॉइंट्स. तो यहाँ पे मुझे दिखा कोप्लेनर पॉइंट्स. कैन आई से कोप्लेनर पॉइंट्स क्या इम्प्लाई करता है, याद है तो 2 स्टेप फॉलो करते हैं. गेट हाउ मेनी वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, और फिर क्या करना है नंबर 2 में एस टी पी इक्वल टू 0. याद आ गया. Okay, so let's go for that. So can I say in the solution, since A, B, C, D are coplanar points, चलो इसमें से 3 वेक्टर बनाओ. तो यहाँ पे कौन से वेक्टर बनेंगे, ए बी बार, बी सी बार, सी डी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स. बराबर. अब जिन्होंने भी ढंग से पढ़ा होगा, आप बोलेगा सर एक प्रॉब्लम हो गया. क्या प्रॉब्लम हो गया, द वेक्टर हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. प्लीज़ ध्यान रखना ये चीज़. ठीक है, सो ए बी ए सी ए डी आर कोप्लेनर वेक्टर्स. और जैसा बोला कोप्लेनर वेक्टर्स, कहना इसे उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा ए बी ए सी ए डी विल बी वॉट, 0. एंड ऑल सेट नाउ. अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो तो आपको क्या चाहिए, आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए. बराबर, स्मॉल ए बी सी चाहिए कि नहीं अपने को. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं. व्हाट इज़ द फॉर्मूला, सो कैन वी राइट हियर नथिंग बट बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार एंड डी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0. एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये हम एल एच एस नहीं कर रहे, गिवन है, तो इसको साथ में सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो नाउ टेल मी, इट्स अ थियोरेटिकल सम. व्हाट यू डू फर्स्ट, इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस. अब मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, जरा आप ध्यान से लिख लेना. ठीक है, सो सी बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0. चलो अब कौन ओपन होगा, सो ऑब्वियसली क्रॉस ओपन होगा. तो हम एक काम करते हैं, ए बार माइनस बी बार डॉट, चलो ओपन करो, सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस ए. बराबर, एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 0. अब एक सेकेंड, यहाँ पे ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0 बार. सो व्हाट आई गेट हियर, यहाँ पे आएगा बी बार माइनस ए बार डॉट ब्रैकेट में सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी इज इक्वल टू वॉट, 0. ठीक है, चलो अब ओपन करते डॉट को. चलो डॉट को ओपन किया तो बी बार अंदर जाएगा, बी बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार. चलो अब ए बार अंदर जाएगा, माइनस ए बार डॉट सी बार क्रॉस डी बार प्लस ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार एंड फाइनली प्लस ए बार डॉट ए बार क्रॉस डी बार इज इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब आपका थर्ड स्टेप हो गया, क्रॉस गया, डॉट गया. अब क्या, आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल आया तो वैल्यू क्या, आइडेंटिकल इम्प्लाइज 0. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आइडेंटिकल है उसको 0 करेंगे. और एक मिनट सॉरी, पहले छोटा बॉक्स बना देते हैं. ठीक है, सबको छोटे बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो बॉक्स बी बार सी बार डी बार माइनस बी बार सी बार ए बार माइनस बी बार ए बार डी बार माइनस ए बार सी बार डी बार प्लस ए बार सी बार ए बार प्लस ए बार डी बार इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब आएगा आइडेंटिकल तो 0. चलो आइडेंटिकल तो 0, जल्दी देखो कौन सा आइडेंटिकल है. तो पहले 4 में आइडेंटिकल नहीं है, द लास्ट 2 आर आइडेंटिकल. बराबर, तो ये दोनों निकल जाएंगे. सो व्हाट आई गेट हियर, यहाँ पे आएगा बी बार सी बार डी बार
अब एक काम करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से ना थोड़ा एडजस्ट भी कर लेते हैं। ओके, तो ज़रा रिक्वायर्ड देखो, व्हाट वाज रिक्वायर्ड का पहला पार्ट बी सी डी दिख रहा है क्या? तो चलो देखो यहाँ पे बी सी डी है क्या अपने पास? अरे वाह, बी सी डी तो रेडी है। चलो नेक्स्ट वाला देखो कौन सा वेक्टर है, नेक्स्ट है सी ए डी। ठीक है, लेट अस चेक सी ए डी है क्या अपने पास? यहाँ पे सी ए डी नहीं है, सी ए डी नहीं है, सी ए डी एक सेकेंड ए सी डी है, बट ठीक है ना, इंटरचेंज करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बार सी बार डी बार। आई होप यू अंडरस्टैंड, हम लोग एडजस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा है जरा देखो, नेक्स्ट वाला इज ए बी डी दिख रहा है क्या? चलो अब ए बी डी है कि नहीं देखो जरा, ए बी डी नहीं, ए बी डी नहीं, ए बी डी यस, बी ए डी है, बट ठीक है हम लोग इंटरचेंज करके बाद में उसको सीधा कर देंगे। ठीक है, चलो ऑन द अदर साइड व्हाट यू वांट, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 3 वेक्टर तो आ गए, सॉरी 3 एस टी पी। ऑन द अदर साइड दे वांट ए बी सी। चलो ए बी सी है क्या जरा देखते हैं, ए बी सी है क्या? बी सी डी, एक मिनट, ए बी सी है बट ये माइनस है। ठीक है, तो उसको अदर साइड में लेके जाएंगे तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने से बॉक्स बी बार सी बार ए बार, तो इसको स्टार मार्क कर देना। और क्या क्या यहाँ पे वी हैव अरेंज द एस टी पी, अरेंज एस टी पी एज रिक्वायर्ड, बराबर। ये चाहिए तो क्लाउड डाल देना यहाँ पे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इससे हमने क्या किया। ठीक है, चलो अब इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज किया तो क्या होगा, इंटरचेंज तो साइन चेंज, एक बार हुआ तो साइन चेंज, या फिर 2 बार हुआ तो वी कीप इट एज इट इज़। चलो ठीक है, नो वी गेट देयरफॉर बी सी डी को तो हाथ लगाना नहीं था। चलो आपको सी ए डी चाहिए था, तो सी ए डी के लिए कितना इंटरचेंज, एक इंटरचेंज, तो यहाँ पे आएगा सी बार ए बार डी बार, बराबर। यहाँ पे आपको ए बी डी चाहिए था, ए बी डी, तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक इंटरचेंज, तो ए बार बी बार डी बार। एंड फाइनली टेल मी अदर साइड में आपको ए बी सी चाहिए था, तो ए बी सी के लिए 2 इंटरचेंज, तो साइन चेंज की सेम, तो साइन रहेगा सेम, एंड कैन आई से हैंस प्रूव। मतलब एंड ऑफ द डे आई एम रिपीटिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट उठने दो, अगर वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और एंगल नहीं दिया है तो आपको एक ही काम करना है, इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस, एंड देन व्हाट यू डू विद दैट, 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। तो पहले इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस, सॉल्व डॉट, आइडेंटिकल तो 0, इंटरचेंज, और आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर विद दिस? ओके, सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5, बराबर। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Now in this question, okay, let us take थोड़ा twist यहाँ पे. So the question is like this: if C bar is equal to A bar plus 3B bar, then show that box A bar, B bar, C bar is equal to 0. Also, if C square is equal to A square plus 3 root 3ab plus 9b square, then find angle between a bar and b bar. चलो इट्स अ फैंटास्टिक सम, एमसीक्यू में आता है ना। क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ठीक है, तो लेट अस टेक 1 बाय 1। पहले हमको क्या प्रूव करना है, बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, बॉक्स प्रोडक्ट 0 मतलब वेक्टर्स आर कोप्लेनर, बट एक सेकेंड जरा ध्यान से देखो, सम में कहाँ पे भी कोप्लेनर बोला नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट उन्होंने सी बार दिया है। ठीक है, तो इफ़ यू आर रियली स्मार्ट कैन आई से यहाँ पे सोल्यूशन में पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट में हम लोग LHS लेते हैं। चलो LHS में क्या है, बॉक्स ए बार बी बार सी बार है, बट अपने पास तो सी बार गिवन है। व्हाट इज सी बार, ए बार प्लस 3b बार। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू कैन आई से ए बार बी बार और ए बार प्लस 3b बार। चलो याद करो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन स्प्लिट दिस STP इंटू 2 पार्ट। तो स्प्लिट STP इंटू 2 पार्ट्स। चलो इसको मैं अगर स्प्लिट करता हूँ तो व्हाट आई गेट हियर, बॉक्स ए बार बी बार ए बार प्लस बॉक्स ए बार बी बार 3b बार, बराबर। अब एक सेकेंड, इज इट नॉट, यहाँ पे मुझे आइडेंटिकल भी दिख रहा है, बट बिफोर दैट कैन आई टेक 3 कॉमन। पहले यहाँ पे वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी वन ऑफ द वेक्टर, याद आया? ओके, एंड नाउ यू कैन से इन STP if any 2 vectors are identical, value of STP is equal to 0. So what we get, LHS is equal to 0 plus 3 into 0, the answer is 0. We got LHS equal to RHS. First part complete. चलो ठीक है, ना पार्ट नंबर 2 में बात करते हैं। चलो पार्ट 2 में उनको क्या चाहिए,
is not required is angle between a bar and b bar. और जैसा मैंने बोला एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, चलो आपके दिमाग में क्या है, एंगल बोला तो डॉट प्रोडक्ट, यू आर, हमको डॉट प्रोडक्ट दिमाग में आता है, मतलब ए डॉट बी मुझे दिखने लगा। अब ज़रा सम में देखते हैं अपने पास ए डॉट बी है क्या, ठीक है। तो सम में हमारे पास ए डॉट बी नहीं है, बट हमारे पास एक रिलेशन है। कम ऑन, कैन यू सी दैट। और अगर ये रिलेशन में, एक सेकेंड, यहाँ पे सी स्क्वायर दिख रहा है, और सी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो विच मीन्स कैन आई डू वन थिंग, इधर हम मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देते, ठीक है। और मैग्नीट्यूड अप्लाई करने के बाद एस डॉट प्रोडक्ट सेज व्हाट, मैग्नीट्यूड दिखा तो क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, कैन वी से वी हैव सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस 3b बार टेकिंग मैग्नीट्यूड, और ये आपका इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। सो वी टेक मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ सी बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस 3b बार, और इसके आगे का पार्ट तो आपको आना चाहिए जिसने डॉट प्रोडक्ट ढंग से किया है। इज नॉट वी स्क्वायर बोथ द साइड, चलो स्क्वायर किया तो क्या आएगा, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस 3b बार का स्क्वायर, ठीक है। चलो ओपन करते हैं, इसको ओपन किया तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 3 2 6 ए बार डॉट बी बार, 3 का स्क्वायर 9 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये हमको मिल गया रिजल्ट। अब ए डॉट बी के जगह पे क्या लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 6 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इंटू 9 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और इसके आगे आप कुछ कर सकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट ए हो जाएगा। अब जरा सम में देखो ना, कुछ दिया है क्या सम में, तो इज इट नॉट, सम में उन्होंने बोला है ऑल्सो इफ सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो इज इट नॉट, पहले एक काम करते हैं, इनको मॉड की जगह पे सी लिख देते हैं, ठीक है। तो कहने से देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 6ab कॉस थीटा प्लस 9b स्क्वायर, और इसको हम रिजल्ट ए दे देंगे, चलो चलेगा। ओके, आप मॉड लिखो या ए बी सी लिखो, इट इज़ वन एंड द सेम, बट आपका गिवन क्या है जरा बताओ, गिवन इज नॉट गिवन इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3√3ab प्लस 9b स्क्वायर। अगर आप ए और बी को कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग ए एंड बी, चलो कंपेयर करो, तो इज इट नॉट आई कैन से 6ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 3√3ab, और मेरे हिसाब से काम खत्म, ए बी गया। सो व्हाट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू, कैन आई से 3√3/6, so what is cos theta is equal to √3/2, and what angles gives you √3/2, can I say 30 degree or pi/6 radians, and you got the angle between the two vectors। मतलब इन्होंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट को आपके एस के साथ कनेक्ट कर दिया। आर यू गेटिंग दिस सम, ओके। चलो लेट्स मूव टू वन मोर सम, ये भी थोड़ा हटके है, नॉर्मल कन्वेंशनल 5 स्टेप को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी टू वेक्टर्स, ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है CET वाइज, ठीक है। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, शो दैट 1 + a स्क्वायर इंटू 1 + b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - a डॉट b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a प्लस b क्रॉस प्लस a क्रॉस b का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने जब पहली बार ये सम देखा था तो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था, अगर आप देख रहे हो तो ये पार्ट में मुझे कन्फ्यूजन हुआ था, ओके। आपको भी शायद से होता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ थियोरेटिकल सम, ओके। ऑब्वियसली LHS इक्वल टू RHS है, तो हम लोग कौन सा साइड लेंगे दिस टाइम, RHS लेंगे, बिकॉज हमको वेक्टर्स दिख रहे हैं वहाँ पे, a डॉट बी का स्क्वायर प्लस वॉट ए बार प्लस बी बार प्लस, अब आपके कन्फ्यूजन को कम करने के लिए कहना इसे ब्रैकेट में ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर, ओके, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। एंड नाउ इफ़ यू सी दिस वेल, डू यू सी दिस एज मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का स्क्वायर, और ये हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, अगर याद है तो कैसे ओपन करते याद करो, चलो क्या किया था हमने, तीनों का स्क्वायर करके ऐड, फिर क्या करना है, दिस इंटू टू, फिर दिस इंटू टू, एंड देन फाइनली दिस इंटू टू, और वो इंटू बोला मतलब क्या लगाना है, डॉट लगाना है, ठीक है। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट नाउ हम लोग, और ये तो नॉर्मल ब्रैकेट है, ओके, क्योंकि ये तो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, मतलब ये आपको कौन सा दिख रहा है, a - b द होल स्क्वायर, ठीक है। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, व्हाट इज a - b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। चलो यहाँ तक ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो व्हाट इज दैट, प्लस ए स्क्वायर, बेटर आई से मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट विथ सेकेंड प्लस 2 फर्स्ट विथ सेकेंड विथ थर्ड बी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार प्लस 2 फर्स्ट विथ थर्ड। कुछ याद आया बराबर? ओके, तो ये वैल्यू अपने पास आ गए। अब इधर ध्यान से देखते तो स्टार्टिंग से सम देखते टर्म देखते हैं तो 1, इट्स ओके 1 तो है अपने पास। 2a बार डॉट बी बार चेक करो, 2a बार डॉट बी बार है क्या कहाँ पे, तो यस वी हैव 2a बार डॉट बी बार। तो इस नॉट ये टर्म और ये टर्म कट हो गए। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए डॉट बी का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया रहेगा तो यहाँ पे कुछ याद आना चाहिए। कम ऑन, क्या याद आ रहा है? इज़ नॉट, मुझे याद आ रहा है लुकिंग एट दिस टर्म, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लुकिंग एट दिस टर्म, मुझे क्या याद आया, मॉड ऑफ क्रॉस का स्क्वायर प्लस डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कुछ याद आया? ठीक है, तो ज़रा सब में देखो अपने पास क्रॉस का स्क्वायर है क्या, तो यस, तो दैट मीन्स डॉट का स्क्वायर और क्रॉस का स्क्वायर ये दोनों साथ में आ जाएंगे। सो आई एम राइटिंग द स्टेप हियर नाउ। यहाँ पे हमको 1 को तो एज इट इज़ रहने देने का है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका एक टर्म बन गया। इज इट डन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, उसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर को भी ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ज़रा इसको याद करो, एक मिनट, ये भी हमने कुछ किया हुआ लग रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक है, फॉर दिस हमने एक डायग्राम बनाया था, याद है तो, बी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार। चलो इसका डायग्राम सोचो, तो डायग्राम बोला तो प्लेन बनाया था, यहाँ पे ए बार, यहाँ पे बी बार, ये आपका ए बार क्रॉस बी बार, याद आ रहा है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार विद बी बार एंड सी बार? इज नॉट दे आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बोला मतलब डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। ऐसा हमने लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था, याद आ रहा है? बट अब ये करने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर स्मार्ट टेल मी, यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों दिख रहे हैं, तो कैन वी राइट दिस एज बॉक्स प्रोडक्ट बराबर, और यहाँ पे अब आ जाएगा 2 ए बार बी बार। एंड बाय द वे आइडेंटिकल दिखा तो वैल्यू क्या होगा, आइडेंटिकल इम्प्लाइज ज़ीरो। तो आपका ये आंसर डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सो आपका चॉइस है, अब आपको क्रॉस से करना है तो आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो, या एसटीपी से करना है तो आप एसटीपी से करो। आई वुड प्रीफर एसटीपी से डायरेक्ट उड़ा दो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो अब बताओ फाइनली क्या बचा अपने पास, तो अपने पास बचा 1 इज़ नॉट, इसका आंसर होगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर। चलो नेक्स्ट टर्म क्या बचा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगे। सो इट इज़ 2 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू ज़ीरो, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, ज़रा यहाँ पे एडजस्ट में कर लेते हैं। टेल मी कैन वी राइट दिस एज 1 प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर को मैं आगे लिखता हूँ, प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं सबको ए बी सी में लिख लेते हैं, ठीक है। सो कैन से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये क्योंकि आपको समझेगा, इज़ नॉट मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर आंसर में चाहिए था तो उसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब मेरे पास 2 टर्म बचे, टेल मी यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर, और सरप्राइज रेडी, 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस बी स्क्वायर, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हमने आर एच एस लिया था तो ये एल एच एस हो गया। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस सम, मतलब इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी मैनेज कर सकते थे, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जेई as well as CET. Okay. Now the question says if A bar, B bar and C bar are mutually perpendicular vectors, then show that बॉक्स ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू। अभी मैं रिक्वायर्ड आपको अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ, ओके फाइन। लेट्स सी व्हाट वी गेट इन द आंसर, फाइन। चलो लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन में। ऑब्वियसली हम लोग रिक्वायर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो रिक्वायर्ड में तो एल एच एस ही दिख रहा है, आर एच एस तो है नहीं, तो हम लोग एल एच एस से स्टार्ट करेंगे। तो एल एच एस में क्या दिख रहा है अपने को, कंसिडर बॉक्स ए बार बी बार सी बार बराबर। चलो ना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, व्हाट यू डू फर्स्ट, इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस। तो कहाँ पे डॉट, पहले डॉट बाद में क्रॉस, और यहाँ पे आके मैं फंस गया था, बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो सम में कुछ नहीं दिया है।
अब जरा ध्यान से देखो, सब में कुछ दिया है बाय द वे. दे सेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. मतलब कैन आई से हियर दे आर सजेस्टिंग सम एंगल्स. ओके, आई एम राइटिंग इट हियर. एंगल्स गिवन. एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ना हिंट बना के आपको देता हूँ पहले. ठीक है, सोल्यूशन इधर ले लेते हैं. हिंट में कैन आई से एस टी पी सम and angle between vectors is given, then we use formula. कुछ याद आया मैंने क्या बोला था? we use formula. And which formula I'm talking? mod a mod b mod c sin phi cos theta. याद आ गया? ओके, सो ये आप दिमाग में रखेंगे तो मेरे हिसाब से काम खत्म. मतलब ये अपना इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस, फिर सॉल्व क्रॉस, सॉल्व डॉट, फिर छोटे छोटे एस टी पी, आइडेंटिकल तो ज़ीरो, इंटरचेंज तो साइन चेंज, ये नहीं है यहाँ पे. ठीक है, एंगल दिया है तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला पार्ट करेंगे. ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन एज वी डिस्कस. हमने क्या कंसिडर किया था? बॉक्स ए बार बी बार सी बार. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप हियर? ऑब्वियसली डॉट एंड क्रॉस तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. और मैंने जैसे बोला यहाँ पे मैं आके फंस गया था. अब मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि सब में एंगल दिया है तो लेट अस यूज फार्मूला. तो कैन वी राइट हियर मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन फाई कॉस थीटा. अब मुझे ज़रा ध्यान से सुनना. ठीक है, और हो सके तो ये चीज़ को 2-3 बार प्रैक्टिस करना. व्हाट इज़ फाई? इफ़ यू रिकॉल, एंगल बिटवीन क्रॉस. नाउ किसके बीच में एंगल है? बी बार, सॉरी किसके बीच में क्रॉस है? बी बार और सी बार. तो आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन बी एंड सी. और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. मतलब कैन आई से फाई इज 90 बराबर. चलो थीटा, व्हाट इज थीटा? इट इज़ एंगल बिटवीन. नाउ अगर मैं आपको डायरेक्टली पूछूँ तो आप क्या बोलेगा? व्हाट इज थीटा? इज इट नॉट दिमाग में 90 आएगा? बट लेट मी टेल यू, ये रॉन्ग आंसर है. एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से आप डेफिनेशन को मत छोड़ो, आपके स्टेप्स को मत छोड़ो. ठीक है, कितना भी सिली कॉन्सेप्ट हो वो स्टेप बाय स्टेप. तो पहले हम थीटा के डेफिनेशन को रिपीट करते हैं. थीटा का डेफिनेशन था एंगल बिटवीन डॉट. और डॉट किसके बीच में है? ज़रा ध्यान से देखो. इज़ इट ए बार और बी बार के बीच में? नो. इज़ इट ए बार और सी बार के बीच में? नो. अगर वो होता तो थीटा 90 था. बट इट इज़ बिटवीन ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार. और ये तो एक नया वेक्टर हो गया. ठीक है, तो दैट इज़ वाई प्लीज़ ध्यान रखना, ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार के बीच का एंगल है. ठीक है, अब वो तो सब में दिया नहीं है. तो एक काम करते हैं, चलो जरा डायग्राम इमेजिन करते हो. तो टेल मी, सबसे पहले डायग्राम में क्या बनाएंगे हम लोग? प्लेन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का बात हो रहा है. कौन से वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है? बी बार एंड सी बार. ठीक है, टेल मी इनके बीच का एंगल कितना है? 90. ओके, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है. नाउ वेर इज बी बार क्रॉस सी बार? ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा. ओके, ये आपका बी बार क्रॉस सी बार हो गया. और ए बार बी बार क्रॉस सी बार को क्या है? परपेंडिकुलर है. तो अगर आप समझ रहे हो तो इज इट नॉट बी और सी के प्लेन को ए बार क्या होगा? परपेंडिकुलर. आई कैन शो समवेयर हियर. हियर देयर इज अ स्मॉल ट्विस्ट. ये जो आपका ए बार है, इज इट नॉट द डायरेक्शन ऑफ द ए बार कैन बी लाइक दिस ऑल्सो और इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. सी, बात परपेंडिकुलर का हुआ है. ओके, अलॉन्ग और इन द सेम डायरेक्शन ऐसा नहीं बोला है वो लोग ने. एंड दैट इज़ वेयर यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे. और यहाँ पे लोग ये मिस करते हैं. एक तो ये थीटा को 90 लिख के गलत करते हैं, और दूसरा यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आते हैं वो गलत करते हैं. ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो, वापस से डायग्राम बनाते हैं. टेल मी, ये वेक्टर कौन सा? बी बार. ये कौन सा? सी बार. ये कौन सा? बी बार क्रॉस सी बार. और ए बार मुझे क्या बनाना है? इसको परपेंडिकुलर. किसको? बी और सी को. ठीक है, तो बी और सी को परपेंडिकुलर बनाया और इसका डायरेक्शन ए बार ऐसा दिया. अब मुझे बताओ, ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार के बीच का एंगल क्या है? सो इट इज़ 0. ठीक है, नाउ लेट्स गो द सेकंड केस. और सेकंड केस अगर आप देख रहे हो तो वापस एक डायग्राम बनाते हैं. इस नॉट, यहाँ पे आपका ये बी बार, ये आपका सी बार, ये आपका बी बार क्रॉस सी बार. एंड वेर इज ए बार? ऑब्वियसली लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू बी एंड सी. लेकिन दिस टाइम डायरेक्शन हम लोग ऐसा लेते हैं. इसको याद है तो हमने अनलाइक पैरेलल भी बोला था, याद आ रहा है? सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? थीटा इज इक्वल टू 180. अब तुम बोलेंगे सर क्या फ़र्क पड़ेगा? आंसर तो वही आएगा, बट नहीं, आंसर अलग आएगा. ज़रा ध्यान से देखो. सो लेट्स कंटिन्यू नाउ. हम लोग डिटेल को रिप्लेस करते हैं. सो वी वर डिस्कसिंग बॉक्स ए बी सी. What was the formula? Mod A, mod B, mod C, sin phi. Phi is 90, cos theta. Cos theta is 0.
साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 भी सॉरी कॉस 0 भी 1 होगा, सो इट इज़ 1 इंटू 1. सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर ए बी सी. चलो ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं बॉक्स ए बार बी बार सी बार. चलो ठीक है, व्हाट इज़ दैट मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन, ये तो 90 फिक्स है, बट कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 180. चलो अगर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आता है तो व्हाट इज कॉस 180 इज नॉट कॉस 180 इज -1. सो व्हाट यू गेट हियर माइनस ए बी सी. तो अगर मिक्स करूँ दोनों केस को तो फ्रॉम बोथ द केसेस what is box a bar b bar c bar is not box a bar b bar c bar is equal to plus or minus abc. is that clear? okay, और ये आपको याद रख सकते हो फॉर शॉर्टकट, बट आई वुड से हम लोग ऑन द स्पॉट ही इसको प्रूव करेंगे. ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर. आई रिपीट अगेन, सब में सबसे बड़ा ट्विस्ट था ये थीटा का 90 नहीं होना. ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. ठीक है, चलो प्रैक्टिस के लिए काम करते हैं, एक और सम ले लेते हैं ऑफ दिस स्टाइल. आई वुड सजेस्ट मेरे पहले आप ये क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लेना और फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखना. ठीक है, और चेक करना आपका आंसर सेम आता है कि नहीं. इन दिस क्वेश्चन दे से इफ़ ए बार बी बार एंड सी बार आर म्यूचुअली perpendicular unit vectors, then find बॉक्स ए बार बी बार सी बार. ठीक है, चलो थिंक अबाउट इट. प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. ओके, नाउ इफ़ यू हैव डन द क्वेश्चन ऑन योर ओन, लेट अस सी आपने क्या किया होगा यहाँ पे. तो पहले हम लोग बॉक्स ए बार बी बार सी बार लेंगे. ठीक है, इट्स अ थियोरेटिकल सम, तो लेट अस इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस. सो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार लिखा होगा आपने. ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या डाला, सिंस द एंगल्स आर गिवन, इसका फॉर्मूला डाला रहेगा मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन फाई कॉस थीटा. चलो फाई और थीटा को डिफाइन किया होगा. व्हाट इज़ फाई? एंगल बिटवीन बी एंड सी. समय कितना दिया है? 90 दिया है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. बराबर. थीटा, आई रिपीट अगेन, दिस इज अ स्टार मार्क स्टेप, इट इज़ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार. बराबर. इज इट 90? आंसर इज नो. ओके, तो व्हाट इज़ द वैल्यू गिवन? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो जाएगा. ठीक है, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली. थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0, और थीटा इक्वल टू क्या? 180. चलो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो आपका बॉक्स ए बार बी बार सी बार क्या होगा? प्लीज़ आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पे. ओके, सो बॉक्स ए बार बी बार सी बार, या फिर बनाई देता हूँ, नहीं तो आप बनाएंगे नहीं. ठीक है, सो हियर यू हैव टू वेक्टर्स बी बार सी बार. आपका कौन सा वेक्टर? बी बार क्रॉस सी बार, और यहाँ पे आपका ए बार इन द सेम डायरेक्शन, एंड इन दिस यू हैव बी बार सी बार, बी बार क्रॉस सी बार, और यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन ए बार. ठीक है, सो विद दिस टेल मी बॉक्स ए बार बी बार सी बार का वैल्यू क्या आएगा? कैन आई डायरेक्टली राइट ए बी सी साइन 90 कॉस 0. बराबर. बट एक सेकेंड, ए बी सी भी कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, फाइनल आंसर इज 1. ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? बॉक्स ए बार बी बार सी बार. व्हाट इज़ द फॉर्मूला? ए बी सी साइन 90 कॉस 180. बराबर. तो यहाँ पे क्या आएगा? यूनिट वेक्टर 1 इंटू 1 इंटू 1, साइन 90 भी 1, बट कॉस -1, तो यहाँ पे आएगा -1. सो कैन आई से फ्रॉम बोथ द केसेस, फ्रॉम अबव केसेस, कैन आई से बॉक्स ए बार बी बार सी बार विल बी प्लस और -1. ठीक है, सो विद दिस वी हैव डन द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एससीबी. एक सेकेंड है, यहाँ पे अपने पास और दो छोटे सम्स हैं. लेट मी कंप्लीट इट हियर इटसेल्फ. Let's say question number 10. Okay, now in this question they say if 2 box 3a bar plus b bar c bar d bar is equal to p box a bar c bar d bar plus q box b bar c bar d bar, then find p plus q. ठीक है, ये आपका CET के लिए इंपॉर्टेंट सम है. ठीक है, नाउ यू वांट टू फाइंड P प्लस Q, मतलब मुझे P और Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा. चलो जरा इसको ध्यान से देखो, और आई रिपीट है, LHS RHS नहीं करना है, गिवन ही है अपने पास. ठीक है, सो टेल मी, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है? करेक्ट. अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है पता है? स्प्लिट. ओके, स्प्लिट का प्रॉपर्टी दिख रहा है. सो आई थिंक सोल्यूशन इज ओवर.
ज़रा ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन 2 टाइम बॉक्स 3a बार प्लस b बार c बार d बार इज इक्वल टू क्या दिया है, p बॉक्स a बार c बार d बार प्लस क्यूब बॉक्स b बार c बार d बार। चलो लेफ्ट साइड में ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम, इस नॉट इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बट एक सेकेंड बिफोर यू डू दैट प्लीज़ रिमेंबर ये जो 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो व्हाट आई गॉट, बॉक्स 3a बार c बार d बार और यहाँ पे क्या आएगा प्लस b बार c बार d बार, याद आया प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू p बॉक्स a बार c बार d बार प्लस q बॉक्स b बार c बार d बार। चलो ठीक है। अब इफ़ यू अंडरस्टैंड यहाँ पे हम कॉमन भी तो ले सकते हैं 3 को बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर कैन आई से 2 ब्रैकेट में 3 बॉक्स a बार c बार d बार प्लस बॉक्स b बार c बार d बार, ओके। ऑन द अदर साइड यू हैव p बॉक्स a बार c बार d बार प्लस q बॉक्स b बार c बार d बार। चलो फाइनल स्टेप, कैन वी ओपन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे आएगा 6 a बार b बार c बार, यहाँ पे आ जाएगा 2 b बार c बार d बार। और मैंने पहली बार जब किया था तो 2 को मिस किया था क्योंकि मैंने 2 के बाजू में कर्ल ब्रैकेट नहीं डाला था, तो प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो p बॉक्स a बार c बार d बार प्लस q बॉक्स b बार c बार d बार, कैन आई से बाय कंपेयरिंग दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 6 एंड q इज इक्वल टू 2। बट पहले अंदर ऑर्डर देख लो ज़रा, ओके एक सेकेंड है, यहाँ पे मैंने ABC लिखा है, इट शुड बी ACD। चलो ज़रा ऑर्डर देख लो, इज़ नॉट वी वांट ACD मैच, BCD मैच, और ये नहीं होता तो मुझे इंटरचेंज करना पड़ता, ठीक है। एंड फाइनली देयरफॉर P प्लस Q इज इक्वल टू व्हाट, 6 + 2 आंसर 8, ठीक है। तो ये टाइप का सम आपको एग्जाम में रहेगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ SCP। 3 बेसिक चीज़ हमने की अगर आप समझ रहे हो तो पहला था इंट्रोड्यूस डॉट एंड क्रॉस एंड फॉलो 4 स्टेप्स, जिसमें हमने क्या किया था, क्रॉस को सॉल्व करो, डॉट को सॉल्व करो, आइडेंटिकल तो 0, इंटरचेंज तो साइन चेंज। दूसरा हमने किया था जहाँ पे एंगल दिया था, ओके। सो अगर एंगल दिया होगा तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसमें ध्यान किस पे देना है, थीटा पे, ओके। थीटा पे ट्विस्ट होगा, हमेशा याद रखना, फाइन। एंड फाइनली तीसरा टाइप हमने कौन सा किया, जहाँ पे प्रॉपर्टी था, जहाँ पे स्प्लिट, कॉमन, ओके, ये टाइप के प्रॉपर्टी बेस्ड सम्स आएंगे, ओके। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो।